Hi students, I am your teacher. Now we have completed our third lesson and we also completed our fourth lesson in the textbook and their question answers. I know you are waiting for the workbook exercise. So today our topic is chapter 4 wonderful exercise workbook exercise. Let's begin our topic. Welcome to online classes for 12th class student of MP board students. Today's topic is we have to complete our exercise book related to wonderful world. In your textbook, title is Wonderful World and I have explained it in the previous video and you have seen them. Let's start to do our exercises. First is fill in the blanks from your memory. I think you have read the poem and you have to memorize the 4 lines of them. So you can fill these blanks easily. If you not memorize, then it is hard for you. Now start to fill it. Great, wide, beautiful, wonderful world. With the wonderful water you furled, and the wonderful grass upon your breast. World, you are beautifully dressed. These are the blanks which we can fill. You can take a screenshot and do it in your fair notebook. Coming to the next, you have to choose the correct option. First one is which of the following words do not rhyme with flow. ऐसा कौन सा शब्द है जिसकी तुक फ्लो से नहीं मिलती है. स्नो मिलती है, गो मिलती है, नाव नहीं मिलती, नो मिलती है. मीन्स नाउ इज द वर्ड that is not rhyming with flow. Okay. Second, read the poem carefully and find out how many rhyming words pairs are there. For to solve this, you have to look in your book. Otherwise you have to memorize the whole poem, but you have to find out or count it in the book. That will be 9. Okay. Next, in the first stanza the poet described the world vastness, visalta, mahanta, because our earth is very vast. How does the poet address the earth in the third stanza? थर्ड स्टेंजा में पोएट ने पृथ्वी को किस रूप में प्रदर्शित किया है? ब्यूटीफुल, वंडरफुल, फ्रेंडली. आई थिंक फ्रेंडली. सो द राइट आंसर इज फ्रेंडली. द पोएट फाइंड हिमसेल्फ वेरी स्मॉल व्हेन ही कंपेयर हिमसेल्फ टू द अर्थ. बिग, ग्रेट, वास्ट, ह्यूज. सो यू नो इट, अर्थ इज वेरी ग्रेट. सो आंसर इज ग्रेट. आई थिंक all the options have been chosen by us. You have to take a screenshot and write it in your fair notebook. Now you have to again fill the blanks. So here are some words given in the bracket: natural, a human being, ocean, amazed, greenery. In the poem you read these words and you can easily fill these blanks. So the first one is the beautiful world is covered with greenery and oceans. The human civilization has made its mark on the natural landscape. Okay. Dash is the best creature on the earth, a human being. We remains dash when we think of the beauties of the wonderful world. Amazed. All the blanks have been filled and you have to take a screenshot of this and do it in your fair notebook. Next is
a poem that name is beauty, and beauty means sundarta, sundar. I am explaining you in Hindi. Beauty is seen in the sunlight, the trees, the bird, corn growing and people working or dancing for their harvest. सुंदरता हमें सूर्य प्रकाश में तब दिखती है जब हम पेड़ों को देखते हैं, पक्षियों को देखते हैं, हम अपनी पकी हुई फसल को देखते हैं और लोगों द्वारा जब उनकी फसल आ जाती है तो बढ़िया उनको नाचते गाते देखते हैं तो हमें सुंदरता दिखाई देती है. नेक्स्ट स्टैंजा. ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, wind singing, rain falling or a singer chanting, anything is earnest. हम जब ब्यूटी को, सुंदरता को देख नहीं सकते हैं, वो कौन सा वक्त होता है? रात. लेकिन सुंदरता को हम रात में सुन सकते हैं. कैसे? जब हवा की सरसराहट चलती है, पानी गिरता है तो उसकी मधुर आवाज़ आती है, जब कोई गायक मधुर तान छेड़ता है तो हमें उसकी सुंदरता सुनाई देती है. इस तरीके से हम सुंदरता को सुन भी सकते हैं. द नेक्स्ट स्टैंजा इज ब्यूटी इज इन योर सेल्फ. अब आपको मालूम है कि आपके अंदर भी सौंदर्य छिपा हुआ है. गुड डीड्स, अच्छी आवश्यकताएं, हैप्पी थॉट्स, आपके अच्छे विचार, द रिपीट देमसेल्फ इन योर ड्रीम, ये सारी चीज़ें आपके स्वप्न में आपके कार्यों के माध्यम से बार बार आते हैं. इसका मतलब कि आपके अंदर भी सौंदर्य पूर्णता छिपा हुआ है जिसे आप समय आने पर निकालते हैं. ई ये श्योर इज द राइटर और वी कैन से डेट पोएट ऑफ दिस पोएम ब्यूटी. नाउ लेट्स स्टार्ट इस क्वेश्चन आंसर. इन द फर्स्ट वी हैव टू पिक आउट द ऑड वन. ऑड वन मीन्स कुछ अलग. हियर हार्वेस्ट, फसल, क्रॉप, अनाज, ईल्ड, अनाजों का ही प्रकार, और प्लाव, खेत को जोतने का तरीका. तो डिफरेंट वर्ड इज प्लाव. सिंगिंग, गाना गाना, चैंटिंग, तान छेड़ना, चैटिंग, बातचीत करना, हमिंग, मधुर तान छेड़ना. दैट मीन्स चैटिंग इज द डिफरेंट वन. ओपिनियन, विचार, व्यू, विचार, दृष्टिकोण, थॉट, विचार, नोशन, द आंसर इज थॉट. हियर ओपिनियन, व्यू एंड नोशन आर द विचार and thought is the different one. Next is earnest, honest, serious, solemn. Here earnest, honest and solemn have the same meaning and serious have the different one, so serious is the odd one out. Dream, vision, nightmare, sensation. The word is sensation because dream, vision, nightmare are the same meaning words. All the odd one out had been complete. Coming to the next. Note down the rhyming word of the poem. It is easy for you. You have to look at the poem and you have to find out rhyming word. But I help you to solve it. Sunlight, nightfall, chanting, harvest. These are the rhyming word in the poem. What do the people do for their harvest? अपनी फसल के लिए लोग क्या करते हैं? अच्छी फसल आती है तो लोग डांस करते हैं. पीपल डांस फॉर देयर हार्वेस्ट. ओके. व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन द देयर इज सनलाइट. सूर्य प्रकाश में हम कौन कौन सी चीज़ों को आकर्षक रूप में देखते हैं? द ट्री, द बर्ड, कॉर्न गोइंग, पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट. ये सारी चीज़ें हमें सुंदर महसूस होती हैं. फिफ्थ, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट हाउ डू यू एक्सपीरियंस ब्यूटी. रात में सुंदरता को हम कैसे महसूस करते हैं? वी हियर ब्यूटी इन द डार्कनेस ऑफ नाइट. हम रात के अंधकार में सुंदरता को सुनते हैं. बाय हवा की सरसराहट, पानी का गिरना या किसी गायक की मधुर तान. ये सभी हम रात में सौंदर्य के रूप में सुनते हैं. व्हाट अकाउंट फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ.
गुड डीड्स, हैप्पी थॉट्स अकाउंट फॉर द ब्यूटी इन आवर सेल्फ। हमारी अच्छी आवश्यकताएं, हमारे अच्छे विचार, यही हमारे सौंदर्य, आंतरिक सौंदर्य है। राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इन द अबाउट 80 वर्ड। 80 शब्दों में, लगभग 80 शब्दों में आपको इस कविता का मुख्य विचार रखना है। सो लेट्स बिगिन द आंसर। इट इज सेड दैट अ थिंग्स इज अ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। यह कहा जाता है कि सौंदर्य हमारे लिए आनंद का विषय होता है। हियर इन दिस पोएम द पोएट सेज दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन। यहाँ कविता में बताया गया है कि सौंदर्य को केवल देखा ही नहीं जा सकता, बट आल्सो हियर्ड इन नेचर, परंतु प्रकृति में उसे सुना भी जा सकता है। दिस ब्यूटी इज एवर लास्टिंग, और यह सौंदर्य हमेशा हमारे साथ रहने वाला है, यह कभी खत्म नहीं होगा। द सनलाइट, द बर्ड्स, द ग्रोइंग कॉर्न एंड द पीपल डांसिंग आर ए लवली सीन्स ऑफ द ब्यूटी। सूर्य प्रकाश में पक्षी का चहचहाना, फसलों का उगना, लोगों का फसलों के लिए डांस करना बड़ा ही सौंदर्य पूर्ण होता है। ब्यूटी कैन बी आल्सो हियर्ड इन द नाइट। सौंदर्य को हम रात में सुन भी सकते हैं। द सिंगिंग ऑफ बाइंड, द फॉलिंग ऑफ द रेन एंड चैंटिंग ऑफ ए सिंगर आर आल्सो ब्यूटीफुल। किसी भी हवा की सरसराहट, पानी का गिरना, किसी गायक की मधुर तान, ये सभी चीज़ सौंदर्य प्रस्तुत करते हैं। ब्यूटी इज द मैन हिमसेल्फ टू। ब्यूटी हमारे अंदर स्वयं होती है। दे इज गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स। हमारे जो गुड डीड्स हैं और हैप्पी थॉट्स हैं वो हमें आंतरिक सौंदर्य प्रदान करते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, वी हैव टू मेक अ नोटिस एंड here a given, draft a notice in not more than 50 words for house captain and vice captain to attend a meeting president over by the principal to prepare a plan for annual function। आप किसी विद्यालय के कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए नोटिस तैयार करना है, जिसमें प्राचार्य द्वारा आपके वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की योजना बनाई जानी है। तो कैसे अपन उसकी नोटिस बनाएंगे? लुक एट हियर। सबसे पहले तो आप अपने स्कूल का नाम लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने इंडियन पब्लिक स्कूल इंदौर लिखा है। उसके बाद नोटिस शब्द लिखा जाता है सेंटर में। इसके बाद आप एक तरफ देखिए 24/11/20, ये डेट डाली जाती है जिस दिन के लिए आपको नोटिस निकालना है, या जो भी नोटिस है आपको जिस दिन पे आपने नोटिस निकाला है वो डेट यहाँ पर डाली जाती है। हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन ऑफ द स्कूल आर हियर बाय इन्फॉर्म डेट अ मीटिंग इज अरेंज टू प्रिपेयर अ प्लान फॉर एनुअल फंक्शन ऑफ द स्कूल। सभी हाउस कैप्टन और वाइस कैप्टन को यह जानकारी दी जा रही है कि आपके लिए एक मीटिंग रखी गई है जिसमें वार्षिकोत्सव पर विचार विमर्श होना है, योजना बनानी है। ऑल द हाउस कैप्टन एंड वाइस कैप्टन आर रिक्वायर्ड टू अटेंड द मीटिंग। सभी को कैप्टन को और वाइस कैप्टन को यह मीटिंग अटेंड करना है। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विल प्रिसाइड ओवर द मीटिंग, और इस मीटिंग की अध्यक्षता प्राचार्य महोदय करेंगे। अब जब की मीटिंग आपको रखना है उस समय का आपको डेट देना पड़ेगा। जैसे इसमें दिया है हमने 26/11/20। टाइम दिया है 2 PM से 4 PM। वेन्यू जहां आपको रखना है उस स्थान का नाम है द असेंबली हॉल। और जिसने ये सूचना निकाली है सुमित्रा जैम, हेड गर्ल। तो जिसने भी ये सूचना निकाली उसका नाम नीचे आएगा और उसका पद रहेगा। ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड इट। कमिंग टू द नेक्स्ट, योर बुक्स वर लॉस्ट when you were out of the games period, draft a notice include details of the last article। आपकी कोई किताब खेल के दौरान गुम गई है, उसके लिए आपको एक नोटिस निकालना है। चलिए कैसे निकालेंगे अपन। चलिए सबसे पहले तो हमने बताया था स्कूल का नाम आपका रहेगा क्योंकि स्कूल में गुमी है। नोटिस आपको बीच में लिखना ही है। लॉस्ट आप लिख देंगे क्योंकि आपने लॉस्ट एंड फाउंड का नोटिस बनाना है। अ बैग कंटेनिंग बुक्स ऑफ 17 अगस्त 20, एक बैग जिसमें किताबें रखी हुई हैं, एट अबाउट 4:30 PM, लगभग 4:30 पे आपकी गुमी है। समवेयर नियर द प्ले ग्राउंड, स्थान कहाँ पर गुमा है? प्ले ग्राउंड में। द बैग इज ग्रीन, बैग का कलर ग्रीन है। नॉर्मल साइज विद पुष्पक तिवारी रिटन ऑन इट, और उसमें पुष्पक तिवारी नाम लिखा हुआ है। अब आपको यह भी बताना है कि किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो पुष्पक तिवारी क्लास 10 से आप संपर्क करें या लाइब्रेरियन के पास में जमा कर दें। इस तरीके से आपका ये नोटिस तैयार हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
आई एम योर टीचर शिव कुमार झारिया, उच्च माध्यमिक शिक्षक, गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल बघराजी, ब्लॉक कुंडम, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर, MP. Thank you for watching this.